Good afternoon students, welcome to today's video lecture of limits and derivatives. We have finished the question number 12, 13, 19 and 30 of business exercise 13 based on the derivatives of composite function. Now, what I will do is that मैंने d by dx of obtain d by dx of sin x using first principle मैंने आपको पहले बता चुका हूं, पर एक बार वापस रिवीजन कर देते हैं. d by dx of obtain d by dx of sin x using first principle. Okay, here solution इसका निकालो. here किसका डेरिवेटिव निकालना है? sin x का. so here fx is sin x. so therefore required क्या है? d by dx of sin x पूछा है. d by dx sin x मतलब वो होता है d by dx of f of x. what is d by dx of fx? it is f dash of x. it is nothing but f dash of x. और वो हम लिख सकते हैं, आपको डेफिनेशन याद है, लिमिट h टेंड्स टू 0 f of x plus h minus f of x upon h. okay, now here fx कितना है? here fx is sin x. तो आपको पता है therefore f of x plus h क्या हो जाएगा? f of y sin of y f of कुछ भी sin of कुछ भी, तो f of sin of x plus h sin of x plus h. इसमें आप सब्स्टिट्यूट करो लिमिट h टेंड्स टू 0, मतलब डेरिवेटिव का नॉलेज चाहिए, फिर फंक्शन का नॉलेज चाहिए, फिर यहाँ पे आएगा sin of x plus h minus sin x whole upon h. अब ट्रियो का नॉलेज चाहिए, sin a minus sin b. sin a minus sin b क्या था? sin a minus sin b था 2 times cos of a plus b by 2 into sin of a minus b by 2. sin a minus sin b is 2 times cos of a plus b by 2 into sin of a minus b by 2. a की जगह पे x plus h, b की जगह पे x, तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 2 into cos of a plus b x plus h plus x whole by 2 into sin of a minus b x plus h minus x by 2 upon h भूलने का नहीं, upon h भूलने का नहीं. हाँ, ये मैं वापस क्यों कर रहा हूँ? because d by dx of cos x d by dx of sin x और cos x को छोड़ के d by dx of tan x using first principle, d by dx of tan x, d by dx of cot x, d by dx of sec x, d by dx of cosec x using first principle मैं आपको सिखा चुका हूँ, और इसमें लिमिट्स का रिवीजन हो जाएगा. d by dx of sin x बाकी है, d by dx of cos x बाकी है using first principle. that's why I'm doing it again. And we have finished all the questions of the exercise, so now no doubts would be there. Also x plus x कितना आएगा? 2x plus h, ये आएगा 2x plus h by 2 into sin of h by 2 whole upon h. now here h tends to 0 है, h tends to 0 है और sin of h by 2 है, तो therefore h by 2 किसको टेंड करेगा? h tends to 0, तो h by 2 0 by 2 0. तो अब हम एडजस्टमेंट कैसे करेंगे? लिमिट h टेंड्स टू 0, तो 2 तो कांस्टेंट है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं. cos फंक्शन कंटीन्यूअस है, h की जगह पे 0 रख दूंगा तो इसका लिमिट तो मिल जाएगा. सो इनटू cos of 2x plus h by 2 इनटू इसका एडजस्टमेंट करना पड़ेगा. कैसे? sin of h by 2 लिखो और h by 2 टेंड्स टू 0 है, तो आप कैसे लिखोगे? sin of h by 2 नीचे sin of h by 2 टेंड्स टू 0, तो नीचे भी क्या आना चाहिए? नीचे भी h by 2 आना चाहिए. ओके, परफेक्ट. पर अब चेक करते हैं, ठीक, एक्स्ट्रा तो मैंने सप्लाई किया 2 टेक करके cos of 2x plus h by 2 टेक करके sin of h by 2 टेक करके h, तो h by 2, तो यहाँ पे ये 2 हमने एक्स्ट्रा सप्लाई किया है h by 2, तो ये 2 कैंसिल करने के लिए आप लिखो into 1 by 2. अब ये सारे रिजल्ट्स कौन से फॉर्म में है? ये सारे रिजल्ट्स कौन से फॉर्म में है? ये पहला रिजल्ट. नाउ आप यही रिजल्ट लिखो तो भी चलेगा कि लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 sin थीटा बाय थीटा इज 1. ये रिजल्ट वो इंपॉर्टेंट है. दूसरा, ये फंक्शन कैसा है? cos फंक्शन कंटीन्यूअस, cos is continuous and half is a
constant and limit of a constant is constant. तो ये आपको याद है, just apply the rules and you will end up getting d by dx of sin x is cos x using first principle. So limit x tends to 0, 2 constant, उसका limit 2 आएगा, cos of 2x plus x by 2, उसमें x की जगह पे 0 सब्स्टिट्यूट कर दो, 2x plus 0 by 2 into sin x by 2 upon x by 2 का limit when x tends to 0, x by 2 tends to 0, 1 into half is constant, so limit of constant is constant, so half. Now you know what is the answer. 2 gets cancelled, or cos 2x by 2 will be cos x, so 1 into cos x आ गया, so 2 into मैंने यहाँ पे half लिख दिया into cos of 2x by 2 which is 1 into cos x, which is 1 into cos x. So what is the answer? Cos x. So what we do? Therefore we prove that d by dx of sin x is cos x. Using first principle. वैसा ही एक क्वेश्चन आई बिलीव सेकंड एक्सरसाइज में था, मतलब 13.2 में फाइंड डेरिवेटिव ऑफ cos x यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल वैसे पूछेंगे, तो दैट इज द वे दे हैव आस्किंग. सो सारे क्वेश्चंस अगर कहीं पे वो पूछते हैं तो आपको उसका रिवीजन हो जाए. ओके, मैं लिख देता हूं फाइंड डेरिवेटिव ऑफ cos x फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल और दूसरा क्या लिख सकते हैं, और यूजिंग डेफिनेशन ऑब्वियसली ऑफ डेरिवेटिव्स. तो किसका डेरिवेटिव निकालना है, cos x का. तो जिस फंक्शन का डेरिवेटिव निकालना है उसको आप fx लिखोगे. हियर फंक्शन इज cos x. You try to get the answer before my answer comes. Here fx is cos x. तो required क्या है, required है derivative of cos x which is a function in x. So required is d by dx of cos x. That you can write as d by dx fx is cos x is fx and d by dx of fx is f dash of x. और आपको पता है कि d by dx of fx है f dash of x को. What is definition of derivative? It is a limit. It is limit where variable h tends to 0 and f of x plus h minus fx whole by h. Okay, now this part is clear. Whole by h. This part is clear. इतना आपको आ गया ना. ये करने के बाद here fx कितना है, cos x. So as fx is cos x, f of x plus h क्या आएगा, f of y cos y, f of t cos t. तो f of कुछ भी is cos of कुछ भी, so f of x plus h is cos of x plus h. That becomes cos of x plus h. तो आप सब्स्टिट्यूट करो f of x plus h, मतलब लिमिट h tends to 0, cos of x यहाँ पे आएगा cos of x plus h minus cos x upon h. Okay, now when you write this, what will happen? फंक्शन फॉर्म में है. Now cos a minus cos b आना चाहिए. Therefore अब मुझे रिजल्ट अप्लाई करना है cos a minus cos b. अगर वो आपको नहीं आता है तो आप आगे नहीं कर पाओगे. If the 3 mark question इतना लिखोगे, you will end up getting half or 1 mark. इससे ज्यादा नहीं. Sin of a plus b by 2 into sin of a minus b by 2. अप्लाई कर दो. काफी स्टूडेंट से लिमिट नहीं लिखेंगे, लिमिट x टेंड टू 0 नहीं लिखेंगे. फाइनली क्या आएगा, -2 sin of a की जगह पे x plus h, b की जगह पे x कितना आएगा, x plus h plus x whole by 2 into sin of x plus h minus x by 2 upon h भूलेगा नहीं, upon h भूलेगा नहीं. Now h tends to 0. अब अगर if your trigo is very nice, see how much you can cut down the solution. fx is cos x कितना था, required इतना सही है. ये आपको लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट लिख लो. ये दोनों स्टेप देकर आप लिख लो. और अगर आप डायरेक्टली यहां से अप्लाई कर सकते हो, नो फ्यूचर बिकॉज़ टेक्स्ट बुक वैसे ही
0 -2 into sin of क्या है into sin of x plus x 2x plus h whole by 2 into sin of a minus b by 2 x plus h minus x so h by 2 बहुत ही जल्दी लिख रहा हूं अगर आप ऐसा लिखते भी हो ठीक है ओके अब बिकॉज़ आपने टाइम भी अप्लाई किया ओके नाउ इसको आपको याद है इसके नाउ हियर एज वेरिएबल h टेंड्स टू 0 अब लिमिट ऑफ अ कांस्टेंट इसका लिमिट इजीली मिल जाएगा sin of 2x plus h h की जगह मैं 0 रखूंगा x कांस्टेंट है 2x plus 0 by 2 sin x मिल जाएगा और ये sin of h by 2 तो ये sin of h by 2 के लिए ये h by 2 किसको टेंड करता है वो मुझे देखना पड़ेगा नाउ as h tends to 0 h by 2 tends to 0 by 2 0 तो sin थीटा कौन थीटा चाहिए तो sin of h by 2 where h by 2 tends to 0 तो नीचे भी h by 2 चाहिए तो वो एडजस्टमेंट करना पड़ेगा दिस इज कंपल्सरी दिस मस्ट बी रिटन सो अगर आप ये दोनों नहीं लिखते हो चलेगा अगर ये लिखते हो तो ये स्टेप बताओ ये स्टेप लिखते हो ये मत लिखना ये लिखते हो तो ये स्टेप मत बताओ और अगर ये टाइप नहीं है ये दोनों नहीं लिखते तो डायरेक्टली वो चलेगा बट दिस इज कंपल्सरी -2 into sin of ओके पहले मैं -2 को सेट किया फिर sin of 2x plus h by 2 भी लिखा अब इधर sin of h by 2 तो नीचे क्या चाहिए ये h by 2 कैंसिल हो sin of कुछ भी तो नीचे भी कुछ भी तो sin of h by 2 into h by 2 -2 एडजस्टमेंट सही sin of 2x plus h by 2 सही ओके नाउ sin of h by 2 एडजस्टेड sin of h by 2 sin of h by 2 और ये h यहां पे h आ गया यहां पे मैंने हाफ सप्लाई किया ये 2 एक्स्ट्रा सप्लाई किया वो 2 कैंसिल करने के लिए into 1 by 2 नाउ एवरीथिंग इज रेडी ये स्टेप भी लिखना पड़ेगा डायरेक्टली आप लिमिट नहीं लगा सकते यहां से ये स्टेप लिखना पड़ेगा एंड दिस आल्सो कंपल्सरी नाउ ये फार्मूला लिखना कंपल्सरी है लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 sin थीटा by थीटा इज 1 बिकॉज़ sin थीटा by थीटा थीटा इज h by 2 टेंड्स टू 0 ये लिखो तो बहुत अच्छा है फिर एक्स्ट्रा आपको लिखना है तो ये sin फंक्शन कंटीन्यूअस है एंड लिमिट ऑफ कांस्टेंट इज कांस्टेंट ये दोनों लाइन करेंगे कॉमा यहां पे sin इज कंटीन्यूअस sin is continuous function and limit of constant is constant must apply कर दो and then the answer you will reach minus sin x ठीक है so limit minus 2 the constant so limit x tends to 0 of constant limit of constant -2 is -2 फिर sin is continuous और x की जगह में इसमें 0 सब्स्टिट्यूट कर दो तो वो आएगा sin of 2x plus 0 by 2 into sin theta by theta limit 1 into limit of constant half उसमें limit of constant half will be 1 so limit of constant half is half now इसको आप लिखो -2 1 into half is half into ये कितना आ जाएगा sin of 2x by 2 so that is -1 now क्या आएगा -1 into sin x which is minus sin x question end ये लिखना कंपल्सरी है ये लिखना कंपल्सरी है ये फॉर्मूला लिखो बिकॉज़ इट इज ऑफ 11th स्टैंडर्ड ये दोनों नहीं लिखोगे चलेगा यहां से आप आंसर सीधा माइनस sin x तो चलेगा सो अल्टीमेटली व्हाट आई प्रूव therefore d by dx of cos x using first principle हमने क्या प्रूव किया minus sin x okay now okay अब d by dx of sin x तो हम निकाल चुके हैं okay now अगर कोई टीचर पूछेगा d by dx of cos x just wait this minute फर्स्ट प्रिंसिपल से तो हम निकाल चुके हैं d by dx of sin x okay लेकिन अरे आप डाटा के रिजल्ट यूज कर सकते हो पर ना एक रिजल्ट हमने लिमिट्स पे किया था अगर आपको याद है कि लिमिट x टेंड्स टू a x रेज़ टू n माइनस a रेज़ टू n अपॉन x माइनस से क्या होता है लिमिट x टेंड्स टू a x रेज़ टू n माइनस a रेज़ टू n अपॉन x माइनस से क्या होता है n into a रेज़ टू n माइनस 1 इसी का एप्लीकेशन लिमिट x tends to a fx instead of x एक फंक्शन होना चाहिए fx
उसका पावर n माइनस स्मॉल a की जगह पे एक कांस्टेंट कैपिटल A रेज टू n और नीचे भी क्या होना चाहिए x रेज टू n माइनस a रेज टू n। तो यहाँ पे x x a और x a को अप्रोच कर रहा है, x a को अप्रोच कर रहा है, मतलब यहाँ पे फंक्शन रेज टू n माइनस a रेज टू n x a को अप्रोच कर रहा है, ये x a को अप्रोच कर रहा है और यहाँ पे x माइनस a आ रहा है। तो यहाँ पे fx माइनस a होना चाहिए और इसका लिमिट if fx tends to capital A for x tends to a हो तो ये कौन से फॉर्म में हो जाएगा, ये हो जाएगा इसके फॉर्म में। तो इसका आंसर क्या आना चाहिए n into a raised to n minus सिंपल। और ये मैं आपको दो क्वेश्चन इसके बताऊंगा तो आपको आराम से समझ में आ जाएगा। ओके, यू विल अंडरस्टैंड दिस, डोंट वरी। ओके, ये स्टाइल क्या है, अंडरस्टैंड दिस। लिमिट मैंने x टेंड्स टू a है, मतलब ये लिमिट लगा है x टेंड्स टू a। यहाँ पे फंक्शन है क्या x, उसका पावर है माइनस कांस्टेंट क्या है a रेज़ टू, दोनों का सेम पावर है और नीचे यहाँ पे x a को अप्रोच कर रहा है तो यहाँ पे वही है x माइनस a, x का पावर है a का पावर है तो यहाँ पे x और a है, इसका लिमिट क्या है n into a रेज़ टू n माइनस 1। तो इस चीज को आप समझो, आपको पता है मैंने sin of fx लिमिट x टेंड्स टू a sin of fx वाला फॉर्मूला दिया था, लिमिट x टेंड्स टू a tan of fx अपॉन fx दिया था। तो उसी लॉजिक में लिमिट, अगर हमको लिमिट निकालनी है, लिमिट x टेंड्स टू a है और यहाँ पे एक फंक्शन है fx और उसका पावर है n माइनस यहाँ पे एक कांस्टेंट है a, उसका भी पावर n ही होना चाहिए और fx a को अप्रोच करना चाहिए और यहाँ पे डिनोमिनेटर में अगर fx माइनस a है तो ये आंसर आएगा n into कैपिटल A रेज़ टू n माइनस 1 if ये fx tends to capital A for x tends to A। ये क्वेश्चंस, ये टाइप के क्वेश्चंस इंस्टेड ऑफ यूजिंग दिस फार्मूला हम लोग क्या करते थे, fx को t रख के हम सॉल्व करते थे, fx को t रख के हम सॉल्व कर रहे थे, fx को t रख के हम सॉल्व कर रहे थे। ओके, now let me give you its application। Okay, obtain d by dx of x raised to n, obtain d by dx of x raised to n, obtain d by dx of x raised to n is equal to n into x raised to n minus 1 using first principle definition involving h tends to 0, मतलब approaching 0। हमने इसका डेरिवेटिव कैसे निकाला है, हमने इसका डेरिवेटिव यूजिंग लिमिट t टेंड्स टू x से निकाला है, तो इसका मैं एप्लीकेशन आपको सिखा रहा हूं। ओके, किसका डेरिवेटिव निकालना है, किसका डेरिवेटिव निकालना है, x रेज़ टू n, तो fx हो गया। अब रिक्वायर्ड, अब देखो रिक्वायर्ड क्या है, d by dx of x raised to n, तो ये क्या हो गया, d by dx of fx। d by dx of fx क्या होता है, d by dx of fx होता है f dash of x, और f dash of x के दो डेफिनेशंस थे पर हम सारे डेफिनेशन जिसमें x टेंड्स टू 0 है उसी से करते हैं। तो कांस्टेंट का तो ठीक है, सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कर चुके हैं, पर x रेज़ टू n का कैसे करेंगे, तो उसके लिए ये मैंने आपको लिमिट में नहीं सिखाया था, इसलिए वो मैंने t टेंड्स टू x से बता दिया। अगर आप वो भी लिखते हो तो कोई टीचर नॉन देगा, पर अगर ऐसा क्वेश्चन आया x को ऐसा पूछा बिकॉज़ फ्यू स्टूडेंट्स वर डूइंग यूजिंग t टेंड्स टू x ऐसा मेंशन किया तो भी आंसर आ जाएगा, कुछ टफ नहीं है। लिमिट h टेंड्स टू 0 f of x plus h minus fx upon h, no problem। now here fx क्या है, यहाँ पे हमारा फंक्शन fx क्या है, x रेज़ टू n, मतलब फंक्शन fx क्या है, x रेज़ टू n, f of कुछ भी रेज़ टू n, f of t, t रेज़ टू n, f of y, y रेज़ टू n, so therefore f of x plus h क्या है, x plus h whole raised to n। अंडरस्टूड? तो डायरेक्टली आप लिख सकते हो लिमिट h टेंड्स टू 0 x plus h रेज़ टू n, यहाँ पे आया x plus h whole raised to n minus x रेज़ टू n अपॉन h। अब अगर आप कंपेयर करो कौन सा रिजल्ट था, d by dx ऑफ वो लिमिट x टेंड्स टू a जो मैंने अभी आपको लिख के दी उसी फॉर्म में
ये मैं कन्वर्ट करूंगा, हम ये सम सॉल्व कर सकते हैं x प्लस h को t ले, तो वही फॉर्म आ जाएगा। अगर मैं यहाँ पे x प्लस h को t ले लूं तो वो फॉर्म आ जाएगा जो हमने t टेंड्स टू x में किया था। दैट्स आल्सो अलाउड, बट व्हाट आई विल डू इज दैट हियर h किसको टेंड कर रहा है, h वेरिएबल, h किसको टेंड कर रहा है 0, तो x प्लस h किसको टेंड करेगा, देयरफॉर x प्लस h किसको टेंड करेगा, h की जगह पे 0, x प्लस 0, तो x प्लस h टेंड्स टू x, समझे? ओके, तो अब आप देखो इसका मैं एडजस्टमेंट कैसे करता हूं। तो इसी चीज को आप डायरेक्टली लिख सकते हो, ऐसे अलग से लिखने की जरूरत नहीं है, ऐसे अलग से लिखने की जरूरत नहीं है। ये h टेंड्स टू, देयरफॉर आप डायरेक्टली लिख सकते हो x प्लस h टेंड्स टू h की जगह पे 0, 0, तो x प्लस 0 x, ऐसा अलग से बताने की जरूरत नहीं है। अगर किसी को डाउट था उसके लिए मैं ऐसे, अब देखो मैं कैसे लिमिट h टेंड्स टू 0, x प्लस h का पावर क्या है n माइनस x का पावर भी n है, हाफ ऑफ यहां पे जो x है क्या है, गेट एज x प्लस h माइनस x का एडजस्टमेंट समझ, आपने एडजस्टमेंट समझा? तो ये कौन से फॉर्म में है कि नाउ अगर आप याद रखो मैंने ये सिखाया आपको, लिमिट x टेंड्स टू a fx and now limit x tends to a fx whole raised to n minus a raised to n upon fx minus a will be n into a raised to n minus 1 if if capital Fx tends to capital A for x tends to a, मतलब x अगर a को अप्रोच करे तब fx अगर कैपिटल A को अप्रोच करे और fx का पावर है माइनस a का पावर है और यहाँ पे fx माइनस a को n into a raised to n minus 1 और ये है, ये लिमिट x टेंड्स टू 0 में लगाता हूँ, h टेंड्स टू 0 लगाता हूँ, तो h टेंड्स टू 0 लगाने पर x प्लस h किस पे अप्रोच कर रहा है, x को, x प्लस h का पावर है माइनस x का पावर है और x प्लस h x को अप्रोच कर रहा है, x प्लस h x को अप्रोच कर रहा है। तो इसी फॉर्म में मैंने कन्वर्ट किया। अब आप कंपेयर करके देखो, ये f ऑफ x है, f ऑफ x रेज़ टू n माइनस x रेज़ टू n x प्लस h माइनस f, एक की जगह पे x है, दोनों में सेम पावर n है, ठीक है? तो इसका आंसर क्या है, इज इक्वल टू, या फिर आप x प्लस h को t ले लो वो भी चलेगा। तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर आएगा n इनटू, एक की जगह पे क्या दिख रहा है, एक की जगह पे आपको x दिख रहा है, तो n into x raised to n minus n into x raised to finish. So therefore what I put, d by dx of x raised to n is n into x raised to n minus 1. Okay, ऐसा और एक क्वेश्चन है, ऐसा और एक क्वेश्चन तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। There is one more question involved in this, so you will understand in a much better way. ऐसे 2-3 क्वेश्चंस करूंगा तभी आपको समझ में आएगा ये। Okay, second, कि obtain d by dx of x cube minus 27 using first principle. This is question number exercise 13.2, question number 4 का first. This is question number 4 का first of exercise 13.2. तो fx क्या है, इसका डेरिवेटिव निकालना है। Here fx क्या है, fx is x cube minus 27, okay, उसका डेरिवेटिव निकालना है। रिक्वायर्ड है d by dx of ये फंक्शन x cube minus 27, it is a function in x, so d by dx of x cube minus 27, मैं खाली आपका अंडरस्टैंड कर लेता हूँ ये fx का, so d by dx of fx, d by dx of fx वो होता है f dash of x, और f dash of x हमको डेफिनेशन यूज करते हैं x टेंड्स टू 0। हाँ, मैंने यही डेफिनेशन से इसका डेरिवेटिव निकाला था, और इसमें मैं मेथड आपको अलग दे रहा हूँ। I am giving you the method which I have taught you right now. ये रिजल्ट का एप्लीकेशन मैं आपको सिखाऊंगा, इस रिजल्ट का मैं आपको एप्लीकेशन सिखाऊंगा, ओके?
So here fx कितना है, here f of x फंक्शन इन x क्या है, x cube minus 27, f of कुछ भी raised to 3 minus 27, तो f of x plus h क्या है, f of x plus h क्या है, f of x plus h क्या है, x की जगह पे x plus h लिखने हैं, x plus h raised to 3 minus 27, f of x cube minus 27, f of t cube minus 27, f of y cube minus 27. So f of x plus h हो जाएगा x plus h cube minus 27. तो this becomes limit h tends to 0. This becomes limit h tends to 0. f of x plus h क्या है, x plus h the whole cube, x plus h the whole cube minus 27 minus x cube minus 27 whole upon h. हमने इसको एक्सपांड किया था अगर आपको याद है, on the brackets x plus h the whole cube minus 27 plus x cube minus x cube minus x cube plus 27 upon h. Okay, right? यहाँ तक हमने सेम रखा. See, टेक्स्ट बुक में थोड़े इक्वेशंस अजीब है. 99.9% they don't come. Their chance of asking मतलब वो sin x raised to n और वो वाले क्वेश्चन in your school या board exam you can say how to say one times, you can say 10001%, but we must know that's why because we are asking for one question. So limit h tends to 0, 27 gets cancelled, x plus h raised to 3 minus x raised to 3. Variable what इधर variable h है, constant x है. Here h is a variable. Okay, मैं लिख देता हूँ. Here h is variable and x is constant. तो आंसर x में ही आने वाला है, ये आपको पता. Now as h tends to 0, x plus h मैं आपको अंडरस्टैंडिंग के लिख रहा हूँ, tends to x plus 0. As h tends to 0, x plus h tends to h की जगह पे 0 सब्स्टिट्यूट करो, x plus 0 क्या होता है, x. तो x plus h tends to x. ठीक है, पर एग्जाम में इतना लंबा चौड़ा लिखने की जरूरत नहीं है. आप सीधा लिखो here h tends to 0, therefore x plus h tends to, इतना लंबा चौड़ा नहीं लिखना है, आपको सीधा लिखना है x plus h tends to x. Okay, that I will write. तो सपोज किसी को डाउट है इसलिए मैंने लिखा, ये एग्जाम में ऐसे नहीं लिखना है, आपको क्या लिखना है here. Now h tends to 0, तो x plus h इसको टेंड करता है, therefore x plus h tends to, h की जगह पे 0, x plus 0 x. तो हाईलाइट करो. ओके, अब मैं वो रिजल्ट लिख रहा हूं जो मुझे इधर यूज करना था. क्या था वो रिजल्ट? लिमिट x tends to a fx whole raised to n minus a raised to n upon fx minus a. आंसर क्या आएगा? n into a raised to n minus 1 if fx और a का पावर सेम होना चाहिए और नीचे fx minus a होना चाहिए, पर हाँ fx a को अप्रोच करना चाहिए if fx tends to a for x tends to a. मतलब x tends to a लिमिट लगाने पर x tends to a, लिमिट लगाने पर x tends to a करने पर अगर कैपिटल fx a को अप्रोच करता है, fx का पावर n है माइनस a का पावर भी n है, fx और a का पावर n है और fx अप्रोचेस a और नीचे fx माइनस a है और दूसरा x tends to a है, तो ये रिजल्ट हो जाएगा लिमिट n to a raised to n minus 1. तो यहाँ पे वही तो है x plus h का पावर 3 है, x का पावर 3 है और x plus h x को अप्रोच कर रहा है, तो इधर लिमिट x tends to 0 लगाने पर x plus h का पावर 3 minus x का पावर भी 3 और x plus h किसको अप्रोच कर रहा है, x. तो नीचे हम अप्लाई करेंगे इस h को, कैन आई राइट दिस एज x plus h minus x. ये काम है और ये रिजल्ट हमको पता है, तो डायरेक्ट ये इसका आंसर क्या आएगा, n into n की जगह पे क्या दिख रहा है, n की जगह पे दोनों में 3 f of ये फंक्शन है x और ये कांस्टेंट x है, h इज अ वेरिएबल f of x और ये x. सीधा आंसर आप क्या
लिखोगे? इसका आंसर आप लिखोगे 3 into x raised to 3 minus 1. So 3 into x raised to 2, which is 3x squared. Finished. So understood? I hope you would have understood. और हाँ, ऐसे वाले क्वेश्चंस मतलब जिसमें थोड़ा कॉम्प्लिकेट होते हैं, अगर वो हम स्टार्टिंग में करेंगे तो आप क्या सोचोगे कि अरे इसका भी एप्लीकेशन पूछेंगे, इसके पूछने की प्रोबेबिलिटी ऑलमोस्ट लाइक 1% मैक्सिमम। तो आप लोगों को फोकस करना चाहिए 99% जो आपको आता है और जो आप कर सकते हो, वो 1% जो टफ है या बहुत टफ है या जिसका पूछने का प्रोबेबिलिटी बहुत कम है, वो मैं एडमिट सिखा रहा हूँ। ऐसा नहीं कि एक साल में तो एक ही चीज सिखा रहा हूँ, मैं उसका रिवीजन भी दे रहा हूँ और उसके रिगार्डिंग टेक्स्ट बुक में एक दो क्वेश्चन है, देन वी आर सॉल्विंग 5 क्वेश्चन, व्हिच इज मोर देन इनफ। ओके, दिस इज क्लियर नाउ। सपोज एक क्वेश्चन है, फाइंड लिमिट, इस चीज को अगर समझना है तो h टेंड्स टू 0 5 plus 2h raised to minus 1 minus 5 raised to minus 1 upon h। समझ गए क्वेश्चन? ये लिमिट लगाने के लिए ये क्वेश्चन मैं आपको सिखा रहा हूँ, तो आपको डेरिवेटिव का समझ गए, मुझे इसका लिमिट निकालना है। तो ये आप क्वेश्चन लिख दो और आपको पता है कि लिमिट के क्वेश्चन जब भी हम करते हैं, लिमिट्स के क्वेश्चन हम जब भी करते हैं, whenever we are doing the questions of limits, उस लिमिट को हम L रखते हैं। तो let this be L, ये L है। Now here h is a variable, so h tends to 0. Now therefore ये 5 plus 2h है, 2 into h tends to 2 into 0, therefore 2h tends to 0। ठीक है, h tends to 0, so 2 into h tends to 0 को मैंने समझा। therefore 5 plus 2h यहाँ पे है, 5 plus 2h tends to 2h 0 को टेंड कर रहा है, 5 plus 0 यहाँ पे वैल्यू देता हूँ। therefore 5 plus 2h tends to 5 plus 0 क्या होता है 5। ठीक है, राइट? ऐसा हमने डिटेल में किया। और अगर इतना डिटेल में आपको नहीं करना है तो आप ऐसा लिख सकते हो कि as h tends to 0, मैं डायरेक्टली लिखता हूं 5 plus 2h, therefore मैं क्या कर रहा हूं, as h tends to 0, 5 plus 2h tends to, h की जगह पे 0 सब्स्टिट्यूट करो इस फंक्शन में, 2 into 0 0, 0 plus 5 5। So therefore here as h tends to 0, 5 plus 2h tends to, आ गया। अब वो लिमिट वाली चीज में वापस ना, हमको रिजल्ट पता है कि लिमिट x tends to a fx raised to क्या होना चाहिए n माइनस, यहाँ पे दूसरा है कांस्टेंट a raised to n, और fx a को अप्रोच करना चाहिए fx और a का पावर सेम होना चाहिए n, और यहाँ पे क्या आना चाहिए fx माइनस a। इसका आंसर होगा n into a raised to a। हाँ, नहीं लिमिट में लिख देता, यहाँ पे 5 plus 2h का पावर -1, 5 का पावर -1, और 5 plus 2h 5 को 10 कर रहा है, 5 plus 2h सॉरी 5 है यहाँ पे, मेरी मिस्टेक, 5 को 10 ये मैंने बताया। तो आप समझ गए 5 plus 2h raised to -1 minus 5 raised to -1, और ये 5 plus 2h 5 का अप्रोच कर रहा है। तो इसको हम सोच सकते हैं कि एक रिजल्ट जो मैंने आपको बताया था, एंड लिमिट x tends to a, ये लिमिट लगाने पर x अप्रोचिंग a लगाने पर अगर हमको लिमिट निकालनी है fx raised to n minus a raised to n, और नीचे fx और a दोनों का पावर n, और नीचे अगर है fx minus a, तो इसका लिमिट हम निकाल सकते हैं if fx approaches a है for x tends to a। इसका लिमिट कैसे मिलेगा? इसका लिमिट होगा n into a raised to a minus, ये रिजल्ट आपको पता है। तो ये जो l है उसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं, लिमिट h tends to 0, मैं लूंगा 5 plus 2h raised to -1 minus 5 raised to -1।
होल अपॉन, मुझे चाहिए 5 + 2h माइनस 5 नीचे चाहिए, तो यहाँ पे पहले 2h है तो मैं पहले लिखता हूँ, इधर मैंने 2h लिखा, 2 सप्लाई किया और वो 2 कैंसिल करने के लिए इनटू 2 लिखा, फिर मैं +5 - 5 कर दूंगा, मैं +5 - 5 कर दूंगा, as I can write as h tends to 0, 5 + 2h whole raised to -1, 5 + 2h, 5 + 2h whole raised to -1 minus 5 raised to -1 अपॉन क्या चाहिए, fx raised to n minus a raised to n, fx raised to n minus a raised to n और fx minus a और fx approaching a होना चाहिए, तो 5 + 2h इसको अप्रोच कर रहा है, 5 को कॉपी करना है, 5 + 2h 5 को अप्रोच कर रहा है, तो यहाँ पे 2h लिखा और फिर मैं ऐड और सब्ट्रैक्ट करता हूँ 5 + 2h minus 5। आप कंपेयर करो इस लिमिट को इस लिमिट के साथ, सारी चीजें सेट हो रही है और आप डायरेक्टली लिख सकते हो कि as h tends to 0, as h tends to 0, 5 + 2h इसको टेंड कर रहा है, 2 ये 0 है, 2 × 0 0 0 + 5 5, so 5 + 2h tends to 5, ठीक है, तो सीधा आंसर L का क्या है, बाय यूजिंग दिस रिजल्ट फ्रॉम द राइट दिस इज 1, तो ये लिमिट का रिजल्ट है और ये रिजल्ट, ये लिमिट सेकंड के फॉर्म में है बाय 1 and 2, इसको रिजल्ट नंबर 2 दे, सो बाय 1 and 2 कंपेयरिंग 1 and 2 इसका लिमिट कैसे मिलेगा, n * a raised to n minus 1, n की जगह पे -1 है और a की जगह पे 5 है, सो आंसर विल बी -1 * 5 raised to -1 n - 1, so -1 - 1 by 1 and 2 comparing 1 and 2, so therefore -1 * 5 raised to -2, so therefore L will be -1, L will be -1 into 5 raised to 2, so -1 into 1 by 25, so L will be -1 into 1 upon 5 square, 1 upon 25, so -1 by 25. You understood? मतलब टेक्स्ट में एक ही क्वेश्चन है जिसमें ये चीज अप्लाई की, तो भी मैंने आपको d/dx of x raised to n ये समझाया, h वाला फॉर्म में ये लिमिट वाला रिजल्ट, ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी दिया और क्वेश्चन नंबर 4 का फॉल्स ऑफ एक्सरसाइज 13.2 भी मैंने आपको बता दिया। सो व्हेन इन द टेक्स्ट बुक देयर इज ओनली वन क्वेश्चन जिसमें वो लोग ये लॉजिक यूज करते हैं कि ऑब्टेन d/dx of x raised to n यूजिंग फॉर्मूला इन्वॉल्विंग x टेंड्स टू 0 वाला लिमिट, तो वो भी मैंने बताया, फिर उसका एप्लीकेशन भी मैंने आपको सिखा दिया और ये लिमिट का एक और क्वेश्चन किया है। सो वी आर डन 3 क्वेश्चंस, मैंने नेक्स्ट में तेरा ओनली गिवन 1, सो दैट इज मोर देन इनफ फॉर यू टू अंडरस्टैंड, और अगर जरूरत पड़ेगी तो मैं और एक क्वेश्चन भी आपको सॉल्व करके दे दूंगा। जस्ट 1 मिनट, टेक सम वाटर एंड देन आई विल कंटिन्यू। सो दैट फिनिशेस नाउ अगर आप देखो तो एग्जांपल नंबर 17 है जिसमें कंप्यूटर डेरिवेटिव ऑफ tan x है और वो लोग बोलेंगे यूजिंग कोशेंट रूल, तो वो चार कंप्यूटर डेरिवेटिव ऑफ tan x यूजिंग कोशेंट रूल ऑलरेडी हम कर चुके हैं, बट लेट्स डू इट फास्ट सो दैट वी विल उसका भी एक बार रिजल्ट हो जाएगा। सो क्वेश्चन प्लीज वो चार एक बार कर देते हैं। ऑब्टेन d/dx of tan x using quotient rule, using quotient rule, ये क्वेश्चन मतलब तो पूछा क्या है, required here fx क्या है, here fx is nx, क्या required क्या है, required क्या है, required पूछा है d/dx of tan x और आप tan x को क्या लिखोगे, d/dx of sin x upon cos x, cos x डिनोमिनेटर में है इसके लिए लिख दो cos x not equal to 0। फिर आपको क्वेश्चन रूल पता है ना,
by dx of u by v is v into du by dx minus u into dv by dx upon v square. Obviously v not equal to 0. So this will be cos x into d by dx of sin x minus sin x into d by dx of cos x. d by dx of tan x. Tan x is sin x upon cos x. Compute the derivative of tan x using quotient rule. ऑलरेडी हम कर चुके हैं. तो ये कितना आएगा? Okay, what is derivative of sin x आ गया. Now what is derivative of sin x? See, वो पता है. d by dx of sin x is cos x और d by dx of cos x is minus sin x. वो तो आपको पता ही होना चाहिए. तो आप लिखो is equal to cos x into d और नीचे b स्क्वायर इधर रहेगा. d दिया था cos x का स्क्वायर. अगर वो भूल रहा है तो रॉन्ग मिलेगा. cos x into what is divided into sin x? cos x minus sin x into d by dx of cos x which is minus sin x और नीचे आएगा cos square x. Okay. So cos into cos square x minus minus plus sin square x upon cos square x. See, these are really easy questions. अगर आप ध्यान से करो तो आराम से. What is cos square x plus sin square x? 1. So 1 upon cos square x which is sin square x. So what we prove? Therefore d by dx of tan x क्या आएगा? sin square x. Okay. So that's a simple question. That's one question. Now, same idea रहेगा. ज़्यादा कुछ मुझे change नहीं करना है. Suppose the question is obtain d by dx of cot x using quotient rule. This is the question. So this part is over. तो अब मैं यहाँ ये चीज रब कर देता हूँ क्योंकि इसकी जरूरत नहीं है. तो इसका सॉल्यूशन पूछा है कि obtain d by dx of cot x. Obtain d by dx of cot x using quotient rule. अगर पूछा है using quotient rule. ओके, तो सॉल्यूशन में क्या पूछा है? required is d by dx of क्या पूछा है? d by dx of cot x पूछा है. और cot x क्या होता है? d by dx of यहाँ पे छोटा सा करेक्शन करो cos x अपॉन sin x. ओके, सॉल्यूशन पूछा है तो ओके required is d by dx of cot x. सॉल्यूशन अगर पूछा है तो कैसे आना है? So what is cot x? cos x अपॉन sin x. sin x डिनोमिनेटर में है, इसके लिए वो 0 नहीं होना चाहिए. sin x not equal to 0. ठीक है, क्वेश्चन रूल मैंने लिख दिया. यहाँ पे मुझे लिखना पड़ेगा sin x. ओके, डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा? डिनोमिनेटर हो जाएगा sin x का स्क्वायर. न्यूमरेटर क्या है? sin x into d by dx of cos x minus sin x into d by dx of cos x. sin x into d by dx of cos x minus cos x into d by dx of sin x. ओके, नाउ इसके बाद इधर थोड़ा टाइम बच जाए इसके लिए मैंने पहली बार आप देखो पूरे चेंजेस किए. अदरवाइज मेजॉरिटी टाइम्स मैं सारी डिटेल में ही सॉल्यूशंस निकालता हूं. ओके, सो यूजिंग क्वोशिएंट रूल हमको डेरिवेटिव निकालना है. तो
require d by dx of cot x. So now sin x, अब तो रिजल्ट है d by dx of cos x क्या होता है माइनस sin x, आप ऐसे ही लिख दो माइनस cos x into d by dx of sin x, तो रिजल्ट ही है, आप डायरेक्ट लिख सकते हो cos x. No teacher will give you wrong upon sin square x finished. Okay, now minus sin square x plus into, so this is minus cos square x whole upon sin square x. Now what do we take out common? Minus 1 into sin square x plus cos square x. What is sin square x plus cos square x? 1. So 1 minus 1 into 1 will be minus 1. Sin square x plus cos square x whole upon sin square x. Cos square x plus sin square x. Sin square x plus cos square x is 1. So minus 1 into 1 upon sin square x. So this gives you minus 1 upon sin square x, which is minus cos x square x. So we prove d by dx of क्या पूछा था cot x. d by dx of cot x हमने क्या निकाला minus cos x square of x minus cos x square of x. So what we have got now, you know what they can ask. They can ask obtain the derivative of obtain derivative of obtain d by dx में लिखेंगे derivative of sec x using quotient rule या division rule. तो sec x तो आप कैसे लिखोगे? अगर आप ध्यान से देखो तो ये डेरिवेटिव ऑफ cot x यूजिंग क्वोशिएंट रूल इज गिवन एज एग्जांपल नंबर 24 का सेकंड जो हम कर चुके हैं, राइट? और यूजिंग डेफिनेशन भी किया है यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल और क्वोशिएंट रूल दो बार कर चुके हैं. तो अब इसमें कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए. रिक्वायर्ड क्या पूछा है? डेरिवेटिव ऑफ मतलब sec x ये फंक्शन x है, सो d by dx ऑफ sec x. अब इसको मैं कैसे लिखूंगा? which is d by dx of what is sec x? लिखूंगा नॉलेज कैसे आना 1 upon sec x. 1 sec x is 1 upon cos x. Denominator cos x cannot be 0. अब आपको पता है कि now d by dx of u by v जो क्या होता है v into du by dx minus u into dv by dx whole upon v square, जहां पे v डिनोमिनेटर कैनॉट बी 0. u की जगह और है v की जगह पे cos x है. आप देखो जितनी बार आप रियलाइज करोगे उतना अच्छा है. दैट्स व्हाई आई डीड इट अगेन. और ये आपको दो बार करना पड़ेगा. once you do two times then only जिसका मैथ्स में एप्लीकेशन अच्छा है, मतलब जो पढ़ाई में अच्छा वो डेफिनेटली हैज दैट स्टूडेंट हैज रिलेटिवली मोर एडवांटेज टू स्कोर मोर. सारे स्टूडेंट्स इक्वली होते हैं. मेजॉरिटी डिफरेंस आ जाता है मेहनत अप्रोच. सो एवरीवन if everyone does the hard work for 4 or 5 for study for you can 4 to 5 hours daily और डेली बेसिस पे आप खत्म करते हो जो भी टीचर ने पढ़ाया है, तो आप एनी बिलो एवरेज को जिसके मार्क्स कम आ रहे हैं उसका रिजल्ट ऑलमोस्ट टॉप 20 में तो पहुंच ही सकता है, टॉप 50 में पहुंच सकता है. मैं तो टॉप 20 ओके. if you are scoring 40-50% if you start working sincerely on daily basis and if you just study regularly finish daily basis पे आप जो भी आपके ट्यूशन टीचर्स पढ़ाते हैं वो आप 4 to 5 hours daily basis फिनिश करो. और अगर आप किसी का रिवीजन वापस एक बार करो you can easily end up scoring above 70%. any student can score above 70% or 60%. no student will fail. physics chemistry maths 10th 9th और 10th standard से आपका रिजल्ट ज्यादा आएगा. even you end up scoring more than your second third or fourth standard also if you become sincere. hard work करो और regularly hard work करो. okay when you study with sincerity. sorry so u मतलब cos x into d by dx of 1 minus 1 into d by dx of cos x upon कितना आएगा cos x the whole square. now you know here अगर आपको लिखना है तो लिख दो कि d by dx of constant to 1 है तो 0 and d by dx of cos x मैं लिख रहा हूं minus sin x.
So cos x into 0 minus 1 into minus sin x whole upon cos x का स्क्वायर क्या आएगा cos square x। तो ये कितना हो जाएगा 0 प्लस sin x, ये हो जाएगा 0 प्लस sin x। अब देखो मैं लेफ्ट साइड में लिख के या छोटे हैंड में लिख के काफी स्टेप्स कम करके मैं लिख सकता हूं, बट दैट इज नॉट द वे आई वर्क। इवन यू हैव टू वर्क हार्ड। 0 प्लस मैं बोलूंगा एक बार हम कर चुके हैं, वापस करने की जरूरत नहीं है। दैट इज नॉट गोइंग टू हेल्प यू। फिर आ गया sin x upon cos square x। पर आपको पता है कि d by dx of tan x using first principle and d by dx of sec x is sec x tan x हम प्रूव कर चुके हैं using क्वेश्चन रूल आल्सो, यूजिंग डेफिनेशन आल्सो। हमने अच्छे तरीके से याद किया है, तो ये आंसर नहीं चलेगा। इसको कैसे लिखेंगे 1 upon cos x into sin x upon cos x, ये हो गया sec x into tan x। स्टैंडर्ड 2 और 3 मार्क क्वेश्चन। d by dx of sec x क्या आएगा, d by dx of sec x आया sec x into tan x using first principle start। अरे क्वेश्चन टू सॉल्व। Now suppose the next question is obtain d by dx of क्या बन जाएगा cosec x using quotient rule। You must try to get this answer before my solution is completed। Just one minute, let me see इसके बाद मुझे क्या कर सकता हूँ। So now just 1 minute, obtain d by dx of cosec x कितना है, obtain d by dx of cosec x, obtain d by dx of cosec x। So d by dx of cosec x, so required solution required क्या है d by dx of cosec x। अब आपको पता है कि हाँ cosec x क्या होता है, आपको पता है cosec x रेसिप्रोकल ऑफ sin, so d by dx of 1 upon sin x डिनोमिनेटर में है इसलिए sin x नॉट इक्वल टू 0। फिर अगर आप डायरेक्टली क्वोशिएंट रूल लिखे बिना सीधा एप्लीकेशन करोगे तो भी चलेगा, पर मैं क्वोशिएंट रूल 99% मैंने लिखा है सारे सॉल्यूशंस में जहां पे वो रिक्वायर्ड है। क्यों? ताकि किसी को अगर याद नहीं आ रहा है तो उसको याद आ जाए देखो। और आप देखो आप रेगुलर लिखोगे तो आपको याद हो जाएगा, और आपको वही सॉल्यूशन इन सारे एक्स्ट्रा पॉइंट्स जो मैं लिखता हूं डिटेल में मेरा सॉल्यूशन काफी बच्चों को लेते लगता है, तो सारे पॉइंट्स के साथ फिनिश। ओके, तो sin x u की जगह पे sin x into d by dx of 1 minus 1 into u की जगह पे 1 v की जगह पे sin x लगा लो। फॉर्मूला d by dx of sin x whole upon sin x the whole square। So this becomes अब आप क्वोशिएंट रूल लिखे बिना आप तो अगर एक क्वोशिएंट रूल लिखना है आप इसमें देखो, फिर हियर d by dx of 1 जो कांस्टेंट है 0 and d by dx of sin x पूछा है cos x। ओके, इस सॉल्यूशन में आप ये और ये अवॉइड कर सकते हो। तो ये लिखा उसके बाद आपको पता ही है sin x into derivative cos 1 is 0 minus 1 into derivative sin x is cos x whole upon sin square x। कुछ स्टूडेंट्स इसको डायरेक्ट लेंगे 0 minus cos x, तो सीधा minus cos x लिखेंगे, that is also fine। So 0 minus cos x upon sin square x। Okay, avoid this step which is minus cos x upon sin square x। अगर आप बुक्स को रिफर करोगे तो पहले ये लिखेंगे, तो ये they will not make sin x is not equal to 0, they will not provide this, ये स्टेप लिखेंगे, इसके बाद ये स्टेप लिखेंगे, इसके बाद सीधा ये लिखेंगे। और ये आंसर नहीं है, आपको पता है आंसर क्या है minus cos x cot x। तो मैं इसको लिखूंगा minus 1 into 1 upon sin x into cos x upon sin x। फिर इसको आप लिखो minus 1 into what is 1 upon sin x cosec x and what is cos x into sin x minus cosec cot x। So minus 1 into 1 upon sin x is cosec x
into cos x upon sin x is cot x. So the answer is minus cosec x cot x. मैंने क्या बोला, काफी बुक्स में d by dx of cot x लिखेंगे, d by dx of 1 upon sin x not equal to 0 नहीं लिखेंगे, फाइन, ये भी फॉर्मूला नहीं लिखेंगे, ये लिखो कंपलसरी सेम। और टेक्स्ट बुक के सॉल्यूशन में ये नहीं होता है, डोंट राइट दिस, ये लिखते हैं यहां से सीधा ये स्टेप लिखेंगे, इस स्टेप से राइट दिस एंड देन राइट द आंसर। और हाँ, अगर आपको ये सारी चीजें अच्छे तरीके से पता है तो आराम से आप सारे सॉल्यूशंस फिनिश कर सकते हो। और हाँ, कोई भी स्टूडेंट irrespective of his or her score in 10th standard in maths और साइंस, अगर कोई भी लड़का या लड़की, कोई भी स्टूडेंट अब से डिसाइड करें कि मैं डेली बेसिस पे सब कुछ फिनिश करूंगा एंड रेगुलर बेसिस पे जो भी पढ़ाया है वो खत्म कर देगा, यू हैव टू स्टडी इफेक्टिवली फॉर 5 hours daily, 1.5 hours physics, 1.5 hours chemistry, 2 hours maths is your group, so you must do maths for 2 hours daily, physics 1.5 hours daily or 1 hour 50 minutes, chemistry minimum 1 hour 50 minutes और maximum 1.5 hours। तो maths 2 hours daily करो, physics 1 hour 50 minutes to 1 hour 30 minutes daily, and chemistry also 1 hour 50 minutes to 1 hour 30 minutes daily. Means suppose you study for say 4.5 hours or 5 hours on daily basis, and even if you can enjoy for 1 hour on daily, रोज आप 1 hour या हाफ एन आवर आपको जो भी वर्क पसंद है वो करो। मोबाइल का थोड़ा यूज करना पड़ेगा, सोशल नेटवर्किंग साइट्स का भी आपको यूज कम करना पड़ेगा, मैं ऐसे नहीं कर रहा हूं, बंद कर दो। तो यू और एवरी स्टूडेंट, नो स्टूडेंट विल फेल, और आपका रेगुलर खत्म होगा तो पढ़ा है और इतना याद रखना कि जब फर्स्ट चैप्टर खत्म तो आप अच्छी तरीके से रिवाइज किए, सेकंड चैप्टर का टाइम फर्स्ट चैप्टर का रिवीजन कर लो, थर्ड चैप्टर का टाइम सेकंड चैप्टर का रिवीजन कर लो, तो वैसे आप रिवीजन करते रहोगे तो इन वेरी नाइसली यू विल बी परफेक्ट विद योर सिलेबस। आप आराम से 70%, 65 to 70% minimum every student can score, not a single student will fail। Just 1 minute, let's see if I can solve more question or not। Okay, sorry, now example 20 का आउट हो सकता है in the miscellaneous example 20 के डेरिवेटिव निकालना है of fx using first principle। तो एग्जांपल नंबर 20 का मैं फर्स्ट कर रहा हूं, फंक्शन क्या दिया हुआ है, fx is sin x plus cos x, रिक्वायर्ड क्या है, इसका डेरिवेटिव चाहिए, सो d by dx of fx चाहिए, d by dx of fx चाहिए। व्हाट इज d by dx of fx, f dash of x, ओके, f dash of x। अब f dash of x का फॉर्मूला लिखो, क्या था, लिमिट h टेंड्स टू 0 f of x plus h minus fx upon h। हियर फंक्शन in x क्या है, f of x sin of x plus cos of x, f of y sin of y plus cos of y, तो f of x plus h क्या होगा, sin of x plus h plus cos of x plus h। सब्स्टिट्यूट कर दो, लिमिट h टेंड्स टू 0 f of x plus h, I write that as sin of x plus h plus cos of x plus h, sin of x plus h plus cos of x plus h minus of sin x plus cos x, और नीचे डिनोमिनेटर में है h, ये तुमने पढ़ा है, ब्रैकेट ओपन कर दो। दिस प्लीज ट्राई टू फॉलो द मेथड आई हैव डन, मींस आप इस सब को मेरे मेथड से करो तो ज्यादा इजी रहेगा, टेक्स्ट बुक के मेथड से भी कर सकते हो। ब्रैकेट ओपन करो तो क्या आएगा, sin of x plus h plus cos of x plus h minus sin x minus cos x whole upon h। Now can you recollect, sin वाले टर्म्स को क्लब करो क्योंकि इसको एक्सपांड करना है और ज्यादा कंफ्यूजिंग करना है। sin of x plus h को आप क्लब कर दो sin of x plus h minus sin x को क्लब करना है। Did you understand? sin of x plus h minus sin x, उसको साथ में लिखो, एक ऐसा मैंने पेयर किया है।
within one step you will get the answer. So this is limit h tends to 0, ब्रैकेट में लिख रहा हूं sin और sin साथ में sin of x plus h minus sin x plus cos of x plus h minus cos x, cos of x plus h minus cos x. So follow the method which is given in the textbook. थोड़ा lengthy भी है, थोड़ा confusing भी है. We'll follow the method which we'll do. अब क्या करूंगा मैं sin of x plus h minus sin x को h से डिवाइड कर दूंगा और लिमिट अप्लाई कर दूंगा, तो मुझे क्या मिल जाएगा, लिमिट h tends to 0 लिखा, लिमिट ऑफ this upon this, तो मैं इंडिविजुअली क्या कर रहा हूं, मैं sin of x plus h minus sin x को h से डिवाइड कर रहा हूं और लिमिट दे रहा हूं. So sin of x plus h, okay, let me write this here. Sin of x plus h minus sin x whole by h plus cos of x plus h minus cos x whole by h. मैं इंडिविजुअली h से डिवाइड कर दिया और अब आप डायरेक्टली इंडिविजुअल लिमिट अप्लाई कर दो, तो आपको फेमिलियर मिल जाएगा. इंडिविजुअल लिमिट अप्लाई कर दो, तो पहला लिमिट क्या आएगा, लिमिट h tends to 0 sin of x plus h minus sin x upon h. फिर रिकलेक्ट, ये हमने कब किया था, ये हमने आज के ही वीडियो लेक्चर में किया है. d by dx of sin x using first principle वही है, और d by dx of cos x using first principle यहाँ पे आ जाएगा. ये आया था उसका पार्ट है d by dx of cos of x plus h upon h. ओके, तो आंसर आ जाएगा ना. अब आपको पता है कि पहले में कौन सा फॉर्मूला जाएगा. अब देखो मैं फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूं, इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0, ये sin a माइनस sin b के फॉर्म में है, तो वो हो जाएगा 2 टाइम्स cos of 2 टाइम्स cos of a plus b, x plus h plus x by 2 into sin of cos sin of x plus h minus x by 2 whole upon h. ये पहला लिमिट, बस मैंने खाली फॉर्मूला नहीं लिखा है, sin a minus sin b मैंने इसका एप्लीकेशन बता दिया, प्लस instead of you will get the answer, मतलब I am converting into a type which you already know. So limit h tends to 0 cos a minus cos b, cos a minus cos b कितना आएगा, minus 2 into cos of x plus h plus x by 2 into sin of cos a minus cos b is minus 2 into sin of minus 2 into sin of b plus b by 2 into sin of a minus b by 2 minus 2 into sin of x plus h plus x by 2 into sin of x plus h minus x by 2. Okay, whole upon h, whole upon h, whole upon h. Okay, finish. इजीली आंसर आ जाएगा. आपको पता ही है आंसर क्या आने वाला है, लिमिट h टेंड्स टू 0. नाउ लिमिट h टेंड्स टू 0, पहले क्या है, 2 into cos of 2x plus h by 2, और आपको पता है sin of h by 2 आएगा, उसके नीचे आप h लिख दोगे, खाली h लिख दो. ये प्लस लिमिट, आपको एडजस्टमेंट सारी चीजें पता है, so that's why I'm doing this question so that revision का revision हो जाएगा and you will not find this question tough. -2 into sin of 2x plus h by 2, इसका लिमिट आराम से निकाल सकते हैं. 2 into cos, इसलिए sin of h by 2 उसके लिए h, because उसमें वेरिएबल है, तो इसमें भी आप देखो sin of h by 2 upon h. अब आपको पता है कि h tends to 0, तो h by 2 also tends to 0. Now limit h tends to 0, so h by 2 tends to 0, वो लगा दो, as h tends to 0, here h approaches 0, therefore h by 2 approaches 0 by 2 0. तो पहले लिमिट में हम क्या लिखेंगे, लिमिट h tends to 0 और 2, ये रहा या ऐसे तो ऐसे रहेगा, 2 into cos of 2x plus h whole by 2 into sin of h by 2 upon h by 2 लिखना पड़ेगा, sin
upon h by 2, this 2x times applying into half. ओके, मैं सारी चीजें रिपीट नहीं करूंगा. अगर आप देखोगे ड्यूरिंग एवरी टाइम एवरी सम आई विल एक्सप्लेन. तो अब जो मैं स्टेप लिख रहा हूं ऑब्वियसली है, एनीवन कैन अंडरस्टैंड. पर हां, उस स्टेप को हर एक चीज दो बार मैंने जो लिखी है अच्छी तरीके से समझाई है, उसको अच्छी तरीके से उसने फॉलो किया है. उस स्टूडेंट ने, लड़कियां लड़की ने, then only that will be effective. Sincerity and honesty is expected. इंटेलिजेंस के साथ कोई कनेक्शन नहीं है. When you are regarding, अगर आपको सोचना है regarding your score, how to score well in 11th and 12th standard, to take right. Okay, so now मैं लिख रहा हूँ कि here मैं सीधा लिख देता हूँ. Now formula limit theta tends to 0 sin theta by theta is 1. और आपको पता है लिमिट ऑफ कांस्टेंट इज कांस्टेंट एंड साइन एंड कॉस आर कंटीन्यूअस, वो लिखने की जरूरत नहीं है. तो जो पहला क्वेश्चन है, जो पहला ब्रैकेट है, उसमें आंसर क्या आएगा अगर आप ध्यान से देखो तो 2 into cos is continuous, 2 into cos of 2x plus 0 by 2 into sin of h by 2 पर h by 2 का लिमिट हाफ टू के वो h sin थीटा बाय थीटा के फॉर्म में है. थीटा टेंड्स टू 0, लिमिट ऑफ सॉरी into 1 into हाफ कांस्टेंट, इसका लिमिट हाफ प्लस minus 2 कांस्टेंट, so लिमिट ऑफ कांस्टेंट इज कांस्टेंट into sin फंक्शन इज कंटीन्यूअस, h की जगह पे 0 सब्स्टिट्यूट कर दो. sin of 2x plus 0 by 2 into sin h by 2 पर h by 2, h by 2 टेंड्स टू 0, इस लिमिट के फॉर्म में है. लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 sin थीटा बाय थीटा, उसका लिमिट 1 और कांस्टेंट हाफ का लिमिट हाफ. और ये हाफ मैंने सप्लाई किया है ये 2 कैंसिल करने के लिए दोनों क्वेश्चन. ठीक है, एंड यू सी यू गॉट द आंसर sin x minus cos x. व्हाई आर यू डू द मेथड व्हिच इज गिवन इन द टेक्स्ट बुक. ओके, एंड sin cos are continuous, ऐसा लिखा मैंने. ओके, are continuous. और दूसरा cos limit of cos is constant होगा, that is what you can apply. मतलब सारे स्टेप्स लिखे, लिमिट ऑफ अ कांस्टेंट इज कांस्टेंट. सॉल्व दिस. सो 2 into हाफ लिखो into sin 2x by 2 plus minus 2 into half into cos 2x by 2. Do you think that is the correct answer? 2 gets cancelled. 1 into sin x plus minus 1 into cos x, so sin x minus cos x. टू इंटू हाफ माइनस 2 इंटू हाफ. वन मिस्टेक और मेरा आंसर गलत आएगा. यू बी वेरी वेरी केयरफुल. एंड हां, दिस इज 1 into cos x. This becomes 1 into cos x minus plus था plus minus 1 into sin x. The answer is cos x minus sin. 1 into cos x plus minus 1 into sin x. The answer is cos x minus sin x. Finished. This is, yes, this is the maximum mark. अगर इसका maximum mark question 4 मार्कर है या 5 मार्कर है तो ये question is that 3 और 5 मार्कर from limits and derivatives. और CBSE बोर्ड में अगर this question अगर आपका maximum marks 5 और 6 मार्कर whatever maximum marks के लिए question आ सकता है because ये derivative of sin x, derivative of cos x using first principle दोनों क्लब किया हुआ है. Now example कौन सा था? एग्जाम्पल 20 का सेकंड में कर रहा हूं. एग्जाम्पल 20 का सेकंड कर रहा हूं. ओके, हियर fx किसका डेरिवेटिव निकालना है? fx किसका डेरिवेटिव निकालना है? डेरिवेटिव ऑफ x sin x निकालना है. x sin x निकालना है. ट्रिको वाले क्वेश्चन से बच्चों को टफ लगते हैं तो रिक्वायर्ड क्या पूछा है? d बार dx ऑफ फंक्शन fx which is
डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स। डी बाई डी एक्स ऑफ क्या पूछा है? डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, डी बाई डी एक्स डेरिवेटिव निकालना है एफ एक्स का। सो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स साइन एक्स पूछा है जो एफ एक्स है। सो डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स वो होता है एफ डैश ऑफ एक्स, और एफ डैश ऑफ एक्स का डेफिनेशन क्या है? लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x अपॉन h। ओके, f ऑफ x क्या है? f ऑफ x इज x sin x, f ऑफ x इज x sin x, f ऑफ x कितना है? x sin x। हियर f ऑफ x is x sin x, therefore f of y into sin y, f of t into sin t, तो f of कुछ भी into sin of कुछ भी, तो f of x plus h क्या है? x plus h into sin of x plus h, f of x plus h into sin of x plus h। ओके, क्लियर? राइट। अब तो आप कैसे इसको अप्लाई करोगे? लिमिट h टेंड्स टू 0 f of x plus h क्या है? x plus h into sin of x plus h minus fx क्या है? x sin x whole upon h। ओके, आंसर आ जाएगा दो स्टेप में, ज्यादा काम नहीं है अगर आप ध्यान से करो तो, which is limit h tends to 0। अब ये x plus h sin of x plus h और minus x sin x है, तो x मल्टीप्लाई कर दो, x into, मैं ब्रैकेट ओपन कर रहा हूँ, x into x plus sin x plus h into sin of x plus h plus h into sin of x plus h minus x sin x easy on h। तो आपको पता है कि x जिसमें कॉमन है x into sin of x plus h, तो x वाले टर्म को साथ में, तो x2 पे कुछ अजीब मेथड है, फॉलो द मेथड व्हिच आई एम डूइंग। तो x sin of x plus h और x sin h को क्लब करो, x into sin of x plus h minus x sin x मैंने लिखा, ओके, प्लस मैं ऐसे अलग कर देता हूं sin of x plus h अपॉन h। वेरिएबल कौन है? इधर वेरिएबल h है, बाकी के सारे लेटर कांस्टेंट है। अब आपको पता है क्या करना है, इंडिविजुअली डिवाइड कर दो या लिमिट अप्लाई कर दो, इट्स योर चॉइस। लिमिट h टेंड्स टू 0, मैं लिखूंगा x into व्हाट आई एम डूइंग इज दैट इस फंक्शन को मैं h से डिवाइड कर रहा हूं और लिमिट अप्लाई कर रहा हूं। सो एक स्टेप मैं स्किप कर रहा हूं, h टेंड्स टू 0 into x sin of x plus h minus x sin x whole upon h is the limit plus लिमिट ऑफ इंडिविजुअली डिवाइड करो, h बाद में कैंसिल करेंगे उसमें फोकस नहीं करना, प्लस लिमिट h टेंड्स टू 0 और क्या बचा? h into sin of x plus h upon h। मतलब इंडिविजुअली डिवाइड करो और ये लिमिट दोनों फंक्शन को दे दो। आप समझे? अगर ये क्वेश्चन लिमिट के बिना मैं ऐसे लिख सकता था, तो फर्स्ट फंक्शन प्लस सेकंड और इस पूरे का लिमिट, ये बहुत अजीबोगरीब हो जाएगा। इसके लिए मैंने क्या किया, इस पूरे फंक्शन को h से डिवाइड किया, इस पूरे फंक्शन को h से डिवाइड किया और ये लिमिट इधर सप्लाई कर दिया, तो इजी रहेगा अंडरस्टैंडिंग के लिए। इसके लिए इसको हम लिखा लिमिट h टेंड्स टू 0, इस पूरे फंक्शन को h से डिवाइड किया, लिमिट सप्लाई किया, फिर ये प्लस का साइन और फिर इस फंक्शन को h से डिवाइड किया और लिमिट h टेंड्स टू 0 सप्लाई कर दिया। I hope now no doubts. I hope I'm clear. Okay, so that is easy to understand, right? Plus limit h tends to 0, h into sin of x plus h upon h. Okay, now you can find the limits easily. How? Tell me. You can get
लिए जो पहला ब्रैकेट है उसमें से x कॉमन निकाल और यहाँ पे h कैंसिल हो जाएगा, h को कैंसिल होगा बिकॉज़ h टेंड्स टू 0, so h इज नॉट इक्वल टू 0, इसलिए आप h कैंसिल कर सकते हो। हियर h टेंड्स टू 0, therefore h cannot be 0, इसलिए आप h वहां से उड़ा दो। अब जो पहला ब्रैकेट है उसमें है लिमिट h टेंड्स टू 0, x कॉमन, and we are left with sin of x plus h minus sin x, okay, upon h। ये पहला आ गया प्लस h वहां पे कैंसिल हो गया और हाँ लिमिट मस्ट बी सप्लाइड एट द सेम टाइम। प्लस क्या बचा, लिमिट h टेंड्स टू 0, खाली बचेगा sin of x plus h, ओके, sin of x plus h। अब ये कौन से फॉर्म है, sin a minus sin b, व्हाट इज sin a minus sin b, 2 into cos of a plus b by 2 into cos of a minus b by 2, तो आपको उस फॉर्म में आंसर लेके आना है। इसका डेरिवेटिव तो आराम से मिल जाएगा, इसका डेरिवेटिव लिमिट तो आराम से मिल जाएगा। इधर मैं लिख रहा हूं पहला ब्रैकेट लिमिट h टेंड्स टू 0, x अपॉन h कर दिया, x अपॉन h कर दिया और sin a minus sin b is 2 times cos of x plus h plus x by 2 into sin of x plus h, okay, limit x is 0 into x upon h into 2 times cos of x plus x by 2 into sin of x plus h minus x by 2, ये आ गया पहला। प्लस लिमिट मस्ट बी सप्लाइड एट द सेम टाइम, लिमिट h टेंड्स टू 0, लिमिट h टेंड्स टू 0, sin of x plus h, now this you can again think as standard मैक्सिमम मार्क्स आपके स्कूल के सब्जेक्ट में अगर गुजरात में 4 और 5 मार्क का है, so this is a 4 और 5 मार्क का क्वेश्चन। सपोज सीबीएसई बोर्ड में मैक्सिमम मार्क्स 6 है या 5 मार्क का, दैट इज दिस क्वेश्चन। सो नाउ व्हाट वी आर लेफ्ट विद, वी आर लेफ्ट विद लिमिट h टेंड्स टू 0, 2 बचेगा, x बचेगा, 2x, यहां पे x अपॉन h है तो 2x भी बचेगा, तो 2x लिखा मैंने इनटू cos ऑफ 2x plus h by 2 into, आपको पता है sin of h by 2 है, तो वो जो नीचे वाला h है you prefer to write below h, sin h के नीचे plus sin of h by 2 के साथ लिखो और दूसरा लिमिट h टेंड्स टू 0, this is not at all a tough, जैसे दिया now here h tends to 0, so h by 2 tends to 0, here h tends to 0, as h tends to 0, here as h tends to 0, h by 2 tends to 0, तो वही डिफरेंट को करना है which is limit h tends to 0, okay, into 2x, h is the variable, बाकी के सारे लेटर constant, so x is constant, तो no problem, so limit x tends to 0 to x, cos में कोई प्रॉब्लम नहीं है, x की जगह पे 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो मिल जाएगा cos of 2x plus into cos of 2x plus h whole by 2 into sin of, मुझे क्या लिखना पड़ेगा, sin of h by 2 अपॉन, मैं लिख रहा हूं h by 2 into, आप लिखो हाफ, 2x सेट हो गया है, आप समझ गए होंगे, मैं वापस एक बार लिख देता हूं, 2x आ गया into 2x into cos of 2x plus h by 2, 2x into cos of x plus h by 2, sin of h by 2 अपन sin of h by 2 है, उधर एडजस्टमेंट जाएगा, sin of h by 2 tends to 0, तो नीचे भी h by 2 चाहिए, तो h by 2 सप्लाई किया, पर ये 2 एक्स्ट्रा है, ये 2 कैंसिल करने के लिए मैं into हाफ कर रहा हूं, हो गया, everything is ready, plus limit h tends to 0
sin of x plus h plus sin of x plus h. So now you apply. Okay, which is the result? पहला रिजल्ट, जो स्टैंडर्ड रिजल्ट हम प्रोड्यूस करना है वो क्या है कि नाउ लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 sin theta by theta is 1 and cos is continuous, sin is continuous and cos comma sin are continuous functions, continuous and limit of constant is constant. See, 5 मार्क का क्वेश्चन है, मैक्सिमम मार्क्स सारा देखो तो कोई टेंशन नहीं। और हाँ, रूल क्या है? डेरिवेटिव डिफरेंशिएशन मस्ट बी डन एट द सेम टाइम एंड लिमिट्स मस्ट बी अप्लाइड एट द सेम टाइम। तो पहले का लिमिट है लिमिट ऑफ कांस्टेंट 2 लिमिट ऑफ x इज द वेरिएबल, x इज कांस्टेंट, तो 2 into 2 इज कांस्टेंट, लिमिट ऑफ 2 आएगा, लिमिट ऑफ x आएगा into cos इसका वेरिएबल, सो cos ऑफ 2x plus 0 by 2 into sin of h by 2 पर h by 2 का लिमिट 1 हाफ का लिमिट हाफ, तो लिख दिया लिमिट अप्लाई करेंगे प्लस इधर लिमिट हम कैसे अप्लाई करेंगे, h की जगह पे 0 सब्स्टिट्यूट कर दो, sin of x plus 0, so answer is sin x cos x plus sin x होगा। Yes, answer आ जाएगा। So this will write as 2 into x into half into cos of 2x by 2 plus sin x। आ गया है आंसर। Yes, so 2 gets cancelled. So 1 into x into cos x plus sin x. So you finally get the answer x cos x plus साइन। टेक्स्ट वाले ने काफी स्टेप्स लिए हैं, डायरेक्ट ब्रैकेट को एक्सपांड करके लाइन टर्म्स को क्लब कर दिया है, ऐसे क्लब किया है, आपको समझ में नहीं आएगा, फॉलो द मेथड व्हिच आई हैव डन, सो यू विल अंडरस्टैंड दैट फिनिशेस आवर टुडेस वीडियो लेक्चर। आई बिलीव अब आपको कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। जस्ट 1 मिनट। ओके, सो दैट फिनिशेस टुडेस वीडियो लेक्चर एंड दैट फिनिशेस द चैप्टर लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स। इसके एक्स्ट्रा क्वेश्चंस होगा, तो व्हाट आई विल डू इज दैट मैं प्रोबेबिलिटी नेक्स्ट चैप्टर जो स्टार्ट करूंगा उसके साथ एक एक क्वेश्चन में रोज सॉल्व करूंगा, व्हिच विल गिव यू मोर आइडिया ऑफ लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स इन अ मच बेटर वे। सो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू, वर्क हार्ड, टेक केयर, डोंट वेस्ट योर टाइम। और जब से मैंने लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स स्टार्ट किया है, यू कैन बिलीव एंड यू मस्ट अंडरस्टैंड दैट योर 12th standard has started। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे।